Hello dear friends, welcome back to my channel. Today I've taken this beautiful poem, Canvas of Soil. It is a very vibrant and very soothing poem, and this beautiful poem is written by Maya Anthony. The poet conveys that through her poem that every gardener, they are the artist, and all the garden is a living masterpiece. This poem also teaches us that how having patience, care and dedication, even a ordinary soil can be turned into an extraordinary beauty. This poem also encourages us or motivates us to observe nature closely, and we should appreciate its creativity in our everyday in our life. And it also reminds us that real beauty is with the nature, and we should always get inspired, and we should also respect nature's art and how nature create beauty and joy in our life. Okay, so let's start the poem. Before we start this poem, let us see some reflect and respond. Work in pair, discuss what all you see in a garden. Think of colors you see and where you see them. Share your responses with your teacher. Okay, here they are asking, discuss what all you see in the garden. So, usually what do we see in the garden? Plants, greenery, green grass, beautiful colorful flowers, blue sky over our head and brown soil. Every vibrant color we could see in the garden. So here they are asking the color we see, green color, we could see green, many vibrant and colorful, different shades of color and brown soil. Okay, so next let's see, they are asking number 2, look at the picture of the garden and a painting given below. Speak about any similarity between garden and painting. So here we could see both the painting, very beautiful pictures, one is painting and other is garden. Okay, now we have to speak or we have to express what are the similarities through these sentences. They have already given some clue. So just as a garden, I have already filled here, just as a garden has many colors and patterns, similarly a painting too has many colors and patterns. Next, a garden and a painting both look beautiful and creative. Color and designs are is sorry, here it should be are. Color and design are common to both a garden and a painting. Next, like a garden, a painting too can express beauty and imagination. So हमने क्या देखा, क्या सिमिलैरिटी देखी दोनों में? जस्ट एज अ गार्डन, गार्डन कैसा होता है? गार्डन में जैसे बहुत सारे कलर्स होते हैं, गार्डन में देखो कितने सारे कलर्स हैं. इन द सेम वे हम जब हम पेंटिंग करते हैं उसमें भी हम वाइब्रेंट एंड डिफरेंट पैटर्न्स हम बनाते हैं, कलर यूज करते हैं, है ना? उसी तरीके से क्या बोले, सिमिलरली पेंटिंग टू हैज मेनी कलर, उसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं. गार्डन एंड पेंटिंग बोथ लुक ब्यूटीफुल, दोनों ही खूबसूरत लगते हैं एंड क्रिएटिव लगते हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में अलग अलग हुनर है. आप देखिए, आप खुद भी अगर बहुत सारे ड्रॉ करते हैं तो एवरी ड्रॉइंग डजंट सीम्स टू बी सिमिलर, एक जैसे नहीं लिखते, आइडेंटिकल नहीं लिखते दिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो भी थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, सो इसलिए बोल रहे हैं कि लुक ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव, हर बार एक नया चीज उसमें ऐड हो जाता है. कलर एंड डिजाइंस आर कॉमन टू बोथ अ गार्डन एंड अ पेंटिंग. तो दोनों का और एक कॉमन क्या होता है? दोनों में कॉमन ये है कि कलर हम यूज करते हैं, कलर एंड डिजाइंस दोनों में ही. जैसे यहाँ पे नेचर में कौन करता है? भगवान हमको देते हैं ये डिफरेंट कलर्स, पैटर्न्स, डिजाइंस. यहाँ पे कौन करता है? पेंटर. ओके, नेक्स्ट, लाइक अ गार्डन पेंटिंग टू कैन एक्सप्रेस ब्यूटी एंड इमेजिनेशन. यानी कि गार्डन जैसे गार्डन करते हैं, जैसे पेंटिंग जो एक्सप्रेस करता है, वैसे गार्डन भी दोनों ही क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं ब्यूटी और इमेजिनेशन, यानी पेंटर की इमेजिनेशन को दिखाता है. और यहाँ पे नेचर का जो इमेजिनेशन है, दैट इज भगवान ने क्या सोच के किया होगा वो इमेजिनेशन, और साथ में हमारे हमारे आंखों का भी इमेजिनेशन. अगर आप नेचर को देख रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं, एट दैट डिपेंड्स अपॉन यू. नेक्स्ट, लेट्स मूव. लेट अस एक्वेंट आवरसेल्फ विद द मीनिंग ऑफ द पैलेट, ह्यू एंड कैनवस. तो ये पैलेट, ह्यू एंड कैनवस, ये सारे आर्टिस्ट या पेंटिंग से रिलेटेड है. हम देख लेते हैं इसका, और ये वर्ड्स जो है वो पोएम में आ चुके हैं, तो दैट्स व्हाई वी शुड बी एक्वेंट अबाउट इट. तो पैलेट क्या है? अ थिन ओवल और रेक्टेंगुलर बोर्ड और टैबलेट दैट अ पेंटर होल्ड्स एंड मिक्सेस कलर ऑन. तो मैं स्क्रीन में आपको दिखाई रही हूँ ऑलरेडी. तो इसमें क्या करते हैं पैलेट में? आप भी यूज करते हैं पैलेट, फोटो देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें हम कलर वगैरह मिक्स करते हैं. नेक्स्ट, ह्यू, शेड ऑफ अ कलर. तो इसके पहले चैप्टर्स में भी ह्यू आया था, तो उसका मतलब होता है डिफरेंट शेड्स ऑफ द कलर. ठीक है, नेक्स्ट है कैनवस. कैनवस मतलब जिसमें हम पेंट करते हैं. अगेन मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ. ओके, चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. Palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners sweep. यहाँ मैंने sweep का मीनिंग लिख के रखा है. sweep मतलब to spread. Brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant chew.
ह्यू। तो ब्रश स्ट्रोक का भी मैंने यहाँ लिखा है, ब्रश स्ट्रोक्स मतलब फिजिकल मार्क्स एंड टेक्सचर लेफ्ट बाय एन आर्टिस्ट और ऑन अ कैनवस। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ ब्रश स्ट्रोक्स। तो ब्रश स्ट्रोक मतलब ब्रश से जो हम स्ट्रोक्स करते हैं, यानी जो भी पेंटर जब पेंटिंग करता है बड़े बड़े कैनवस में तो ब्रश स्ट्रोक का वो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पैलेट मैंने अभी दिखाया था, फिर से दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन में। पैलेट ऑफ अर्थ मतलब यहाँ पे क्या पोएट ने क्या बोला कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सॉइल को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आर्टिस्ट के पैलेट के साथ। यहाँ पे बोल रहे हैं अर्थ जो है वो क्या है, पैलेट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ को पैलेट की तरह बोल रहे हैं। जैसे पैलेट में डिफरेंट कलर होते हैं वैसे अर्थ में भी डिफरेंट कलर है, इसलिए बोल रहे हैं रिच एंड डीप, यानी इतने कलर इतने पैटर्न है कि इट इज क्वाइट डीप, यानी इसको समझना मुश्किल है कि कितने कलर्स है नेचर में। वे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर स्वीप, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि पेंटर क्या करते हैं कि पेंटिंग के लिए, अपने पेंटिंग के लिए वो बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं और जितनी पॉसिबिलिटीज है यानी अपनी इमेजिनेशन को उसमें डालते हैं। तो वैसे गार्डनर भी पैलेट यानी कि अर्थ के हेल्प से पेंटिंग करता है। कैसे पेंट करेगा, यहाँ पे यानी कि क्या बोल रहे हैं, जो गार्डनर है वो क्या करता है, मिक्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स। वो जो एक आशा लेके गार्डन में आया है कि ब्यूटीफुल गार्डन होगा, फूलों से भरा होगा, तो उनका जो एक होप है, तो ये होप को और उनके जो सपना है, वो ड्रीम है, वो क्या करते हैं, दे मिक्सेस इनटू द सॉइल। ठीक है, तो जैसे पेंटर डिफरेंट डिफरेंट कलर को मिक्स करके सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है, वैसे गार्डनर जो अपने ड्रीम है और अपने जो होप है उसको मिक्स करते हैं और किसमें मिक्स करके डालते हैं, अर्थ में। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू। तो जैसे पेंटर जो है बहुत ही केयरफुली ब्रश स्ट्रोक्स को यूज करता है जिससे कि उसका पेंटिंग बहुत खूबसूरत बने। इन द सेम वे जो गार्डनर है ही ऑल्सो क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रश स्ट्रोक को किसमें कंपेयर किया जाए, सीड्स आर कंपेयर टू द ब्रश स्ट्रोक। सीड को यहाँ पे जैसे ब्रश स्ट्रोक को यूज करते हैं वैसे गार्डनर जो है वो सीड को एज अ ब्रश स्ट्रोक यूज कर रहा है। जैसे ब्रश स्ट्रोक को वो सावधानी से चलाता है, केयरफुली चलाता है, वैसे गार्डनर भी सीड को केयरफुली क्या करता है, प्लांट करता है सॉइल में विथ केयर, बहुत ही ध्यान से। एंड उसके पीछे पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है कि वो जो प्लांट है वो काफी बड़ा सा हो, यानी बहुत हेल्दी हो, और जिस भी रीजन से वो प्लांट कर रहा है वो उसका फुलफिल करे। नेक्स्ट अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। तो जैसे पेशेंटली पेंटर जो है वो पेंट करता है और फाइनली पेशेंटली काफी टाइम, मतलब जितना भी टाइम लगता है पेंटिंग करने के बाद, फाइनली उसका एक सुंदर सा डिजाइन बाहर आता है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि जो गार्डनर ने सीड को प्लांट किया है वो भी पेशेंटली वेट करता है। तो ये जो सीड है वो इमीडिएटली जो है वो ब्लूम नहीं होता है, वो सीडलिंग में चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, इट टेक्स टाइम, वो समय लेता है ना, और वो पेशेंटली वेट करता है किसका, स्प्रिंग के लिए। यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, तो स्प्रिंग के लिए वेट करता है। एंड व्हेन दी सीड्स विल टर्न इनटू ब्राइट एंड लाइवली कलर, है ना, फाइनली जब वो बड़ा होगा पेड़, उसमें से फ्लावर्स होंगे तो ब्राइट एंड लाइवली कलर बोले ब्लूम करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो स्टैंजा है वो क्या कर रहा है, ये ब्यूटीफुली ये हाईलाइट कर रहा है क्या, द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, कैसे सीड देने से एक लाइफ जो है वो बाहर आती है। तो एक यहाँ पे जो एक बिगनिंग ऑफ द आर्ट या बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन, यहाँ पे आर्ट क्यों मैंने बोला, बिकॉज वो आर्टिस्ट का भी वो बिगनिंग बताया कि कैसे ब्रश स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गार्डनर भी क्या हो रहा है, एक लाइफ को यानी उसको जिंदा कर रहे हैं, लाइवली कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे और एक दो चीज को इंपॉर्टेंस दिया, वो क्या, एफर्ट्स एंड पेशेंस। तो एफर्ट एंड पेशेंस से ही कोई भी एक ऑर्डिनरी सॉइल भी क्या हो रहा है, विथ फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ लाइफ से भर जाएगा। तो वैसे ही एफर्ट एंड पेशेंस के साथ जो पेंटर भी है उसका एक सुंदर सा पेंटिंग उभर के आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे फर्स्ट स्टैंजा में गार्डनर ने बहुत ही पेशेंटली उसको सो किया सॉइल में, है ना, तो बहुत एफर्ट्स के साथ किया। तो अब यहाँ पे उनका जो है सेकंड पैराग्राफ में उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, ब्लॉसम ब्लूम, अभी वो टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है, उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है, गार्डनर्स का जो एफर्ट है वो अभी बाहर आ रहा है। वो क्या है, फ्लावर्स जो है वो ब्लूम हो रहे हैं, वो खिल रहे हैं ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर क्या कर रहे हैं, और एक तरह का एक ब्यूटीफुल सीनिक क्रिएट कर रहा है, बहुत ही सुंदर सा सीन जो है वो दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई गार्डन नहीं है बल्कि एक पेंटेड पिक्चर जैसे दिख रहा है। पेंटेड साइट लिखा है तो पेंटेड पिक्चर जैसे एक पिक्चर में बहुत सारे कलर यूज करके जो एक पेंटर खूबसूरत सा आई कैची पेंटिंग बनाते हैं, तो वैसे ही अभी वो गार्डन कैसा लग रहा है, पूरे फूल कलरफुल फ्लावर से भर गया है एंड एक तरह का पेंटेड साइट जैसा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट लिखा है, मतलब हु इज डांसिंग, दैट फ्लावर, जो फूल जो ब्लॉसम हो चुका था, खिल चुका है, वो क्या कर रहे हैं,
खुशी से सनलाइट में, मॉर्निंग लाइट लिखा है यानी सनलाइट में वो खुशी से डांस कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? एडिंग लाइफ एंड मूवमेंट दिखा रहा है। किस तरीके से जो ऑर्डिनरी सॉइल था उसमें क्या हो गया, उसमें एक जान आ गई है अभी, है ना, एंड उसमें एक मूवमेंट आ गया है, ब्यूटी, एक सुंदर सा ब्यूटी ऐड हो गया है। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, यानी कि कितने सारे शेड्स है आप नेचर में देखेंगे, एन नंबर ऑफ कलर्स आपको दिखेगा, है ना। कुछ ग्रीन में ही आपको कितने शेड्स दिखेंगे, रेड के भी आप फ्लावर्स देखिए, हर रेड फ्लावर इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो आप रेड बोलो, ग्रीन बोलो या कोई भी कलर बोलो, नेचर में इतने शेड्स है दैट वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। तो नेचर्स का जो आर्ट वर्क है एवर न्यू मीन्स एवरीडे, हर रोज आप देखेंगे तो हर रोज उसमें कुछ ना कुछ नयापन जरूर दिखेगा। उसी तरीके से जैसे पेंटर एक ही पेंटिंग अगर 10 बार भी बनाता है, तो अब ये 10 जो अलग अलग कैनवस में उन्होंने बनाया है, तो हर पेंटिंग एकदम आइडेंटिकल नहीं दिखेगा, हर बार उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। फुल सा पैलेट अर्थ दिया है गार्डनर को, और गार्डनर ने अपने मेहनत, अपने एफर्ट से, पेशेंस से ये नेचर को एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क में चेंज किया, और इट इज एवरीडे चेंजिंग। आप देखेंगे जो नेचर है वो क्या यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है कि नेचर इज, इट इज रिच, इट इज क्वाइट रिच, एंड ऑल्सो दिस पैराग्राफ इज शोइंग दैट डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर। ठीक है, ये जो फ्रेज है नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, ये दिखा रहा है कि दैट ब्यूटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज एवर चेंजिंग, हर बार ये इट इज एवर चेंजिंग एंड इट इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। तो ये जो स्टैंजा है, तो जैसे पहला वाला स्टैंजा क्या बता रहा था, एफर्ट एंड पेशेंस एंड बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये स्टैंजा, ये दिखा रहा है कि कैसे नेचर जो है वो क्रिएट करता है, न्यू न्यू चीजें क्रिएट करते हैं, एंड वाइब्रेंट एंड आई कैची सीन, हर रोज इट इज एवर चेंजिंग सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ coincides in the hands of those who till gardens becomes painting still। तो यहाँ पे इन दिस स्टैंजा पोएट क्या कंपेयर करेगा, पोएट कंपेयर्स ईच गार्डन प्लॉट व्हाट टू अ वाइड कैनवस, काफी बड़ा सा कैनवस से, जैसे पेंटर कैनवस में पेंट करता है, तो हर एक प्लॉट को, हर एक गार्डन प्लॉट को वाइड कैनवस के साथ कंपेयर किया है। यहाँ पे ये कंपैरिजन बहुत ही सुंदर कंपैरिजन है, विच शोज दैट आर्ट एंड लाइफ कम टुगेदर। एक ऐसा कंपैरिजन किया है, ऐसा लगा जैसे आर्ट एंड लाइफ जो है वो एक साथ आ गया है। इन द हैंड ऑफ दोज हु टिल, यानी कि जैसे पेंटर, जस्ट लाइक अ पेंटर यूजेस कैनवस, जैसे पेंटर एक कैनवस यूज करता है टू क्रिएट अ न्यू आर्ट, कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखाना चाह रहा है, इन द सेम वे वैसे ही क्या गार्डनर ऑल्सो यूजेस द लैंड, जो भी प्लॉट बोल सकते हैं, गार्डन लैंड बोल सकते हैं, किस चीज के लिए, टू ग्रो प्लांट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, एंड देयर हार्ड वर्क एंड उनका जो एफर्ट है दैट टर्न इन द ऑर्डिनरी सॉइल इनटू समथिंग ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। ठीक है, तो इनके हैंड में गार्डनर के हैंड में ये जो ऑर्डिनरी सॉइल था बिकम्स पेंटिंग स्टिल, मतलब बिल्कुल पेंटिंग की जो वाइब्रेंट हो गया है, ब्यूटीफुल हो गया है, समथिंग मीनिंगफुल हो गया है। जैसे जो कैनवस रहता है, जब कैनवस जब स्टार्ट करता है आर्टिस्ट, इट इज व्हाइट, है ना, इसमें कोई चीज हमें समझ, नथिंग इज देयर, इट इज यानी टोटल कोरा है ना, देयर इज नथिंग इन दैट, बट एज सुन एज द पेंटर यूजेस डिफरेंट कलर्स एंड इट बिकम्स लाइवली। इन द सेम वे जो सॉइल है, जब गार्डनर उसमें एफर्ट नहीं डाला, इट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी सॉइल, बट जब गार्डनर विद पेशेंस एंड इज एफर्ट्स जब वो डालता है, तो एक ऑर्डिनरी सॉइल भी किस तरीके से पेंटिंग की जैसा बन जाता है। तो ये स्टैंजा क्या बोलते हैं, ये स्टैंजा ये बता रहा है, ये एम्फेसिस कर रहा है दैट अ फिजिकल वर्क कौन कर रहा है, गार्डनर। तो फिजिकल वर्क कैन ऑल्सो क्रिएट, इट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस टू क्रिएट, जो फिजिकल वर्क है वो क्रिएटिव भी है, क्रिएटिव प्रोसेस है, क्योंकि वो फिजिकली अपना एफर्ट उसने डाला था, एंड फाइनली जो रिजल्ट आया अ ब्यूटीफुल सिनिक, तो इट इज अ क्रिएटिव। फिर क्या बोल रहा है, और वो किसके कारण हो रहा है, इन द हैंड्स ऑफ गार्डनर, यहाँ पे लिखा भी है इन द हैंड्स, है ना, तो इन द हैंड्स ऑफ गार्डनर, तो क्या हो गया, गार्डनर जो गार्डन बना है, क्या बना, इट इज अ लिविंग पेंटिंग बन जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग है लेकिन जिंदा है ना, एंड दिस ब्यूटी always continues to grow and remain beautiful for over the time, हमेशा ही सुंदर रहता है and keeps on changing। ठीक है, so I hope you have understood this poem। if you have any doubt you can write in the comment section box, and don't forget to subscribe my channel। till then, bye bye to all of you।